Bismillahirrahmanirrahim. 9 student, today we discuss unit 5 gravitational. In this chapter today we discuss a very important important topic, lecture number 5. The name of the lecture is a satellite. Now you are very familiar with the word satellite. But what do we mean by satellite and what is the purpose of satellite in daily life? Remember, satellites are those objects which always revolve around the earth. So there are two types of satellite. The first one is called natural satellite and the second one is called student artificial satellite. Natural satellite, for example, moon is a natural satellite and moon his own work. You know that what is the working of the moon. So the second one is a artificial satellite. Remember, man-made satellite is called artificial satellite. So the big one artificial satellite name is a geostationary satellite, and these satellites are formed by its own purpose. For example, weather system, communication system, satellite communication system, defense system, etc. So they have its own types and its own purpose. Now in this video we discuss definition of satellite, types of satellite, orbital speed of satellite depends on the speed of satellite on which factor, and then we calculate the mathematical value for the orbital speed of the geostationary satellite. So let us begin our lecture. Remember, first of all, we define satellite. What is satellite? A satellite is a naturally occurring or man-made object that orbits another object larger than itself by force of gravity. A satellite is a naturally occurring or what a man-made. So naturally occurring means moon. So moon is a naturally occurring satellite or man-made object. They are called what, which is artificial satellite. Another object larger than itself by force of gravity. इसके बाद बच्चे हमने डिस्कस करना है स्टूडेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट. सो सैटेलाइट के टू टाइप्स है. एक है नेचुरल सैटेलाइट और दूसरा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट. अब नेचुरल सैटेलाइट क्या है? अ नेचुरल बॉडी ऑर्बिटिंग another body so large that center of mass as well within the larger body is called natural satellite of the body. Moon is the natural satellite. Of 6 of the major planets possess natural satellite. The second one is a आर्टिफिशियल सैटेलाइट. जिस तरह नाम से साबित है आर्टिफिशियल, मसनूही, जो कि खुद बनाया गया हो. एनी ऑब्जेक्ट पर्पसली प्लेस इनटू ऑर्बिट ऑफ अर्थ और अदर प्लैनेट, स्टार और सन और टर्म इज अ नेचुरल सैटेलाइट. फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट was launched in 1957. Since then, thousands have been sent for communication industry, for example, internet, mobile phones, TV communication, etc. तो इनमें से जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है उसका नाम है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. अब इसको जियो स्टेशनरी मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट में हमारे पास जो बिग नेम आता है वो है जियो
स्टेशनरी सैटेलाइट। अब उसे ये नाम क्यों दिया गया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? देखिए बच्चे, जियो का मतलब होता है अर्थ, स्टेशनरी का मतलब है रेस्ट, सैटेलाइट होता है। तो इसकी वजह यही है, इसको ये नाम इसी वजह से दिया गया कि हमारी ज़मीन एक चक्कर 24 घंटों में पूरा करता है और ये सैटेलाइट भी एक चक्कर 24 घंटों में पूरा करता है। अब अगर हम उसे देखें तो ये हमें रिलेटिव मोशन की वजह से रेस में नज़र आएगा। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वेदर सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, डिफेंस सिस्टम को क्या करता है बच्चे? कंट्रोल करता है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक बहुत बड़ा सैटेलाइट है जो कि इसकी तमाम दुनिया में बच्चे तादाद कितनी है? 3 है। ठीक है। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बहुत से फ़ायदे हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं हमारे पास जो दिन ब दिन कम्युनिकेशन सिस्टम है बच्चे, वेदर सिस्टम है, इंटरनेट सिस्टम है, पूल है, ये सब इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बदौलत। अगर ये ना होता तो फिर हमें ये कम्युनिकेशन, ये जो हम बातचीत कर रहे हैं, ये हम इतनी आसानी से ना कर सकते। तो ये सब कुछ पॉसिबल है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या आर्टिफिशियल सैटेलाइट की वजह से। अब देखिए इसके बाद है वर्किंग, मतलब सैटेलाइट किस तरह काम करता है। A satellite is put into orbit by moving it to a high altitude। और ये मान में रख के वैसे कि उस ऑर्बिट का भी एक अपना स्पीड होगा जिसको हम सैटेलाइट उसमें रखते हैं। किसके लिए? ऑर्बिट के लिए, मतलब मूविंग के लिए। सो अ सैटेलाइट इज पुट इनटू ऑर्बिट by moving it to a high altitude and then accelerating it to a sufficiently high tangential speed with the use of water rockets। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, if the speed is too high, अगर स्पीड बहुत ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? ये सैटेलाइट है, ये ग्रेविटेशन पुल से बाहर हो जाएगा और फिर ये वेटलेस होगा बच्चे, फिर ये कभी भी वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर इसकी स्पीड बहुत लो है तो ये वापस आने की इसकी पॉसिबिलिटी है और वो वापस आ सकता है। सो देखें, इफ द स्पीड इज टू हाई द स्पेसक्राफ्ट आइदर मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट or will not be confined by the earth gravity and will escape never return। वो कभी भी वो escape हो जाएगा और कभी भी वापस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो escape वेलोसिटी का जो स्पीड है, अगर हमने किसी चीज़ को यहाँ से escape करना है फॉरएवर के लिए तो वो है हमारे पास 11 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर किसी बॉडी की स्पीड हम 11 किलोमीटर पर सेकेंड करें तो वो ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप होके स्पेस में जा सकता है। इफ द स्पीड इज टू लो, अगर स्पीड बहुत कम है तो फिर क्या हो जाएगा? इट विल फॉल बैक टू अर्थ। सैटेलाइट्स आर टिपिकली पुट इनटू सर्कुलर ऑर्बिट बिकॉज सच ऑर्बिट रिक्वायर द लीस्ट टेक ऑफ स्पीड। इसके लिए कुछ अपना टेक ऑफ स्पीड रिक्वायर होता है, इसी वजह से हम सैटेलाइट को ऑर्बिट में पुट करते हैं। द हाई स्पीड, इफ अ सैटेलाइट इन ऑर्बिट स्टॉप मूविंग इट विल फॉल डायरेक्टली टुवर्ड अर्थ, बट एट सफिशिएंट स्पीड अ सैटेलाइट वुड ऑर्बिट इन स्पेस अराउंड अ लार्जर बॉडी। इसके बाद बच्चे हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बच्चे स्पीड ऑफ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। स्पीड ऑफ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, इसके हम कैलकुलेशन करेंगे और ये बच्चे बहुत ज़रूरी है, सैटेलाइट में इसको आपने ज़रूर करना है। देखिए बच्चे, टॉपिक है स्पीड ऑफ, इसके
उसके साथ है स्पीड ऑफ सैटेलाइट in a circular orbit कैलकुलेशन। तो इसके लिए बच्चे आप लोगों ने सबसे पहले बनानी होगी डायग्राम। देखिए बच्चे, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास अर्थ है। हमारे पास क्या है? अर्थ। और हम जानते हैं कि मास ऑफ द अर्थ को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ME से। ये हमारे पास क्या है बच्चे? दैट इज अर्थ। मास ऑफ द अर्थ को हम रिप्रेजेंट करते हैं ME से। ठीक है। अब ये हमारे पास है, हम जानते हैं दैट इज द सरफेस ऑफ द अर्थ। दैट इज सरफेस ऑफ द अर्थ। और हम जानते हैं बच्चे कि सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो G की वैल्यू होती है वो सबसे मैक्सिमम होती है। G की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हमारे पास एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट का ये सैटेलाइट है। अब इस सैटेलाइट का बच्चे मास है व्हाट? M। अब ये सैटेलाइट आर दोज ऑब्जेक्ट which always revolve around the earth in a circular orbit। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक that is R या रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे इस सैटेलाइट को हमने ज़मीन से रखा है हाइट पे। फॉर एग्जांपल ये सैटेलाइट है। अब इस सैटेलाइट को हमने ज़मीन पे रखा है, हाइट है फॉर एग्जांपल 3.5 into 10 की पावर 7 into 10 की पावर 7 मीटर के हाइट पे। और ये सैटेलाइट बच्चे फिर रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ। तो यहाँ पे सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो सैटेलाइट रिवॉल्व करता है इसकी हमने स्पीड मालूम करनी है। और फिर अगर इतने हाइट पे हो तो फिर इसकी जो स्पीड है वो कितनी होगी। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने ये कहा कि लेट अस कंसिडर अ सैटेलाइट ऑफ मास m revolving around the earth having mass of the earth is ME and radius of the earth is R। तो हम जानते हैं किस सैटेलाइट पे एक फोर्स एक्ट करेगा and that is called water gravitational force। So remember we know that from Newton's law of universal gravitation, mathematically we know that gravitational force is equal to G M ME divided by RE square। Say that is my equation number 1। अब देखिए बच्चे, अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव करे तो यहाँ पे एक फोर्स एक होगी and that is called what? Centripetal force। So centripetal force is that force which compel a body to move along a circle in its direction is toward the center of the circle। So we know that centripetal force mathematically is equal to mv square divided by re। that is my equation number 2। अगर हम कंडीशन लगा ले कि ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, so then gravitation force is equal to G ME divided by RE square, centripetal force MV square divided by RE।
Now, RE should be cancelled, MM should be cancelled. So G ME RE is equal to V square. Now taking square root both sides, V square is equal to GME RE अंडर द रूट. तो यहाँ पे देखिए V स्क्वायर इज इक्वल टू GME डिवाइड बाय RE. नाउ V शुड बी कैंसल. अब V इज इक्वल टू GME डिवाइड बाय RE अंडर द रूट. से दैट इज माय इक्वेशन नंबर 3. अब इस इक्वेशन की मदद से बच्चे साबित है कि स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द सैटेलाइट. सो यहाँ से एक बात ये साबित हो गई कि जितना रेडियस ऑफ द अर्थ कम होगा उतना ही स्पीड ऑफ द सैटेलाइट ज़्यादा होगा. जितना मास ऑफ द अर्थ ज़्यादा होगा उतना ही स्पीड ऑफ द सैटेलाइट ज़्यादा होगा. लेकिन स्पीड ऑफ द सैटेलाइट मास ऑफ द सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करता. अब देखिए बच्चे, नाउ एट a height of h is equal to 3.5 and to 10 की power 7 meter. What is the speed of the geostationary satellite? So इसको बच्चे हम कैलकुलेट करते हैं. देखिए यहाँ पे इसको बच्चे हम कैलकुलेट करते हैं. देखिए हम जानते हैं कि C की जो वैल्यू है दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है 6.67 एंड टू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. मास ऑफ द अर्थ हमारे पास है 6.4 एंड टू 10 की पावर 6 मीटर. रेडियस ऑफ द अर्थ है 6.4, 10 की पावर मास ऑफ द अर्थ है 6.4 या 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम. ये है 6.4 10 की पावर 6 मीटर. और हाइट हमारे पास है 3.5 10 की पावर 7 मीटर. Put values in equation number 3, then V is equal to G 6.67 and to 10 की power -11 multiply mass of the 6 into 10 की power 24. Now that is 3.5 10 की power 7 under the root. V is equal to 6.67 into 6 divided by 3.5 multiply 10 की power -11 10 की power -7 10 की power 24 मीटर पर सेकेंड. नो V इज इक्वल टू, इसको हम कैलकुलेट करें तो इससे आएगा 3.7 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड. अब V इज इक्वल टू 3.7, यहाँ पे 10 की पावर 3 का मतलब किलो होता है तो किलोमीटर पर सेकेंड. सो दैट इज द स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट in a circular orbit. So thank you students.